Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to revise our chapter that is wind, storms and cyclones, right? तो ये जो chapter हम लोगों ने study कर लिया है, today we are going to revise that. So what you need to do is you need to just open your notebooks, right? जिसमें आपने notes लिखे हैं अपने and उन notes को साथ साथ revise करते चलें, ठीक है? कोई भी चीज़ छूट गई हो तो उसे वापस से note भी कर सकते हैं. So this is a good opportunity to revise the whole chapter because उसके बाद हम questions करेंगे, right? Next lecture में हम लोग questions करेंगे. So what you need to do is to make sure you pay attention and you revise the whole chapter, ठीक है? That is good thing. And you all know that we do study for the school examination as well as the Olympiad. So basically अगर आप स्टडी कर रहे हैं स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, ओलंपियाड्स के लिए या फिर सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, then that would be a good thing because you should definitely study more and more, right? And that is the main thing what we are providing you. We are providing you the content by which you can definitely going to increase your knowledge, you are going to crack your school examination as well as the Olympiads. And that is the most you can say important thing for you all, right? If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You need to write the code TTB07 in the search box of the Telegram app. जैसे ही आप ये लिखेंगे वैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में चैनल की जो लिस्ट है वो अपीयर हो जाएगी. यू कैन ज्वाइन द चैनल फॉर क्लास 7, right? And you will be getting all the DPPs and study material including the notification for the upcoming video. जो भी हम आपको videos देते हैं about these studies and these chapters, right? And this is the 8th chapter for us, right? इसके बाद हमारा एक chapter और बचा and then we will be done for the 7th class. Alright, now see. This is the team which is going to help you a lot. This team is putting so much effort in preparing content for you all so that we are going to provide you the quality education you deserve. And these lectures are free for everyone, right? That is the main thing. You should consider these lectures, you should study from these lectures and you should definitely going to share with all the students you know, right? If you do so, अगर आप इन lectures को share करते हैं सभी बच्चों के साथ, तो दैट इज़ द मेन थिंग. क्योंकि जो बच्चे क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, दे कैन वॉच फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स, दे कैन अचीव ऑल देयर टारगेट्स, देयर स्कूल टारगेट्स, देयर you can say career goals, right? They can definitely going to do that. So basically if you share these video lectures to everybody, so anybody who is in need for these lectures can definitely going to study from them, right? That is a good cause, right? So you should definitely going to share all these videos. Now these video lectures are free, right? But in accordance to that, we have also created some packages for you all. So basically, if you are the one who needs a proper guiding year-long, you can say study, consistent study, then you can definitely study with this, right? With the full package. And if you are the one only for the testing part, then you can join the test series also. And to access these packages, you need to go on the website, that is www.talkingtextbooks.in. So you need to go on that website. Only then you are going to see such type of packages over there, the full package in the test series, right? And you can access those packages definitely. And the thing, most important thing is that these packages, the full package, include all the necessary things you need to crack any examination, right? So that is the main thing. You are going to get the study material, recorded and live classes, homework submission feature. You have to do the homework and you have to submit it to us. And then with the periodic test papers, definitely you are going to face those examination, right? तो examination का pattern पता करने के लिए कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, how much questions you are going to do, right? All such things will be cleared by these periodic test papers and the bi-weekly quizzes. Bi-weekly quizzes में क्या होगा? You are going to attempt quizzes twice a week. That would be you are going to do it, right? तो आपको क्या पता चलेगा? बहुत ही frequently आपको पता चलेगा how this concept is going to be asked in the questions, right? That is the main thing. That's why it is a, you can say, major important thing you can include in your life. Now see the test series. टेस्ट सीरीज में जो भी पार्ट है वो टेस्टिंग पार्ट है, राइट? तो बेसिकली देखो, periodic test papers, recorded live classes, bi-weekly quizzes. So these included in the test series, right? So you can definitely going to buy that. You can buy that if you are into the test series, right? And if you really want to buy them, then you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111.
and then definitely you can get all your queries resolved over there by calling us. So you should definitely do that. Now let's get started. So this is the thing what we are going to do today, but before that promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis, right? So you should definitely going to revise. आज भी रिवीजन का दिन है और डेली भी रिवाइज हमें करना है, ठीक है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, नॉट फॉर रिवीजन. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोगों ने विंड के बारे में स्टडी किया था सबसे पहले. सो व्हाट वी कॉल अबाउट व्हाट इज विंड, हम कैसे किसी को डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज विंड. So we know that air is around us, and when that air moves from one place to another, we call that as a wind. ठीक है, उसे हम wind कहते हैं. एयर क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है. बट द रीजन इज व्हाई इट डज फ्लो, क्यों वो ऐसा करती है, दैट इज द प्रेशर. जब कभी भी किसी एक रीजन का प्रेशर कम हो जाता है, सो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ एयर मूव करती है. राइट, एयर क्या करती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कभी भी ये प्रेशर का डिफरेंस आएगा, राइट, ओनली देन एयर मूव करती है. ठीक है, अब क्योंकि हमें तो ये बात पता है कि हवा तो बहुत ज़्यादा चलती रहती है, विंड बहुत ज़्यादा फ्लो होते रहती है, दैट मीन्स ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा ओकेजनली क्रिएट होता रहता है, तभी तो विंड फ्लो कर पाती है. राइट, दैट इज द मेन रीजन वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दीज प्रेशर डिफरेंस आर क्रिएटेड. Alright, next see, the greater the difference in pressure, the faster the air moves. जितना ज़्यादा pressure difference होगा उतना ही तेजी से जो air है वो flow करेगी. So if बहुत ही तेज speed आ रही है अगर air की, that means the pressure difference बहुत 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 ज़्यादा है. Right, and अगर जहाँ बहुत ही slow wind flow हो रही है, so we can say the pressure difference is low. Right, so it depends on that. बट ये जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं ये नेचर में किस तरीके से क्रिएट होते हैं ये हम बताएंगे. राइट, लेकिन बिफोर दैट लेट्स स्टडी ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, किस तरीके से ऐसा पॉसिबल हो पाता है. सो देखिए, हमारी जो अर्थ है, राइट, अर्थ के यू कैन से इक्वेटर पे जो रोशनी गिरती है, सनलाइट फॉल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है. दैट मीन्स उसके पास बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है. एंड जो सनलाइट पोल्स पे, नॉर्थ एंड द साउथ पोल पे फॉल होती है, वो सनलाइट लिटिल बिट ऑफ लेस इंटेंस होती है. क्यों, बिकॉज उस वक्त क्या होता है, लिटिल बिट ऑफ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उसे सनलाइट को रिफ्रैक्शन करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव द एटमॉस्फेरिक लेयर्स अराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं. राइट, तो वेनेवर जब सन की जो रेज होती है, जब कभी भी वो सीधे बिल्कुल जाती हैं, एट दैट टाइम वहाँ की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि जब कोई भी सनलाइट रेज पोल्स पे जा रही हैं, सो पोल्स पे जाते वक्त क्या होता है, देयर आर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन आउट देयर. राइट, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, सनलाइट जाती है तो उनकी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब जो हो जाती है, तो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है जब पोल्स पे लाइट जाती है. राइट, एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब कभी भी इक्वेटर के ऊपर हमेशा जो सनलाइट गिर रही होती है बहुत इंटेंस होती है, तो वो वहाँ उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है लैंड का. राइट, एंड वो जो लैंड है जब वो हीटअप हो जाता है तो उस लैंड के ऊपर प्रेजेंट जो एयर होती है वो हीटअप हो जाती है. नाउ हॉट एयर अब क्या करेगी, राइज अप हो जाएगी. सो इट इज़ लाइटर एंड डेफिनेटली इन वेट, सो बेसिकली इट राइजेज अप. जैसे ही वो राइज होती है वैसे ही क्या होता है, नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. राइट, एंड उस लो प्रेशर पे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल से आने वाली जितनी भी एयर है वो उसका स्पेस फिलअप करने के लिए मूव करती है. सो देयर इज द मूवमेंट बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, हीटिंग. राइट, हीटिंग ऑफ द अर्थ, दैट इज अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. राइट, दैट इज द कॉज कि भाई हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ विंड फ्लो करती है, बिकॉज इक्वेटर के ऊपर बहुत जल्दी एयर गर्म हो जाती है एंड इट राइजेस अप लीविंग इट्स प्लेस. To fill up that place, सारी air from the north pole and the south pole flows to that areas which are near to the equator. Right, that is the main thing, the pressure difference created, because जैसे ही air ऊपर उठती है नीचे pressure कम हो जाता है, so the pressure is higher on the poles. ठीक है, अब वहाँ से air move करती है towards the low pressure, that is toward the equator. ठीक है, and that's how यहाँ पर एक convection create हो जाता है air का from high pressure region to low pressure region. Right, that is why air generally flows and we will be looking up to that also.
बट बिफोर दैट हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटी देखते हैं जिनकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या क्या कर सकता है। ये जो प्रेशर का नीड है वो क्या करवा सकता है, वो विंड फ्लो करवा सकता है, उसका स्पीड इंक्रीज कर सकता है, एंड व्हाट एल्स। सो बेसिकली टू फाइंड आउट दैट वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, हमने कोन्स लिए थे, यू कैन से टिन कैन लिए थे, राइट। एक देखिए ये टिन कैन वो है जब ये बिल्कुल ठीक ठाक था, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रस्ड दिस टिन कैन, राइट। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने कैसे इसको इतना ज़्यादा क्रश कर दिया, बिकॉज हम लोग स्टैंड कर रहे हैं ना, हम लोग अभी तुम यहाँ आराम से बैठे हुए अपने घर पे, राइट। सो बेसिकली आप जो वीडियो देख रहे हैं राइट नाउ, आपके आसपास भी एटमॉस्फेयर आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, बट आप तो क्रश नहीं होते, राइट। द रीजन इज दैट हमारे अंदर का जो ब्लड फ्लो है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, दैट इज बैलेंस्ड आउट बाय द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अगर किसी तरह हमारे अंदर का प्रेशर किसी तरीके से कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, इन दैट केस वी कैन बी क्रश्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही हुआ इस टिन कैन के साथ। व्हाट वी डिड हियर, हमने टिन कैन लिया, इस टिन कैन के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला, एंड व्हाट वी डिड, एक टाइट स्टॉपर को खोलकर अच्छे से जो है देख लिया, रख दिया अब इसे हीट अप करने के लिए। सो हीटअप होने पे क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट जितना भी वेपर क्रिएट होंगी बिकॉज ऑफ द वाटर, वो वेपर क्या करेंगी, वो वेपर यहाँ पे प्रेजेंट जो एयर है उसे बाहर निकाल देंगी, राइट। सो मोस्ट ऑफ द एयर विल थ्रोन आउट ऑफ दिस टिन कैन, एंड ज्यादातर यहाँ पर क्या फिल्डअप हो जाएगी, वाटर वेपर्स हो जाएंगी, राइट। एंड देन व्हाट वी डिड, हम लोगों ने टिन कैन को हटाकर कूल करने के लिए रख दिया, टाइट स्टॉपर से उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही उस टिन कैन का टेम्परेचर कम होगा वैसे ही क्या होगा, बाहर के यू कैन से अंदर का और बाहर का जो टेम्परेचर कम हुआ तो अंदर की जो वाटर वेपर्स थी उनका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट दे कंडेंसेस, ठीक है। तो कंडेंस होने के बाद क्या हुआ, अंदर अब कुछ भी नहीं बचा, राइट। मोस्ट ऑफ द एयर क्योंकि बाहर फेंक दी गई थी तो अंदर एयर नहीं है, ठीक है। फिर हमने टाइट क्लोज कर दिया था, तो जितना भी वेपर अंदर थी वो वेपर जैसे ही कंडेंस हो जाएंगी, अंदर कोई भी चीज बैलेंस आउट करने के लिए नहीं बचेगी बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, राइट। एंड दैट इज द रीजन, जब अंदर कोई भी चीज नहीं है बाहर के प्रेशर को होल्ड अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तभी जाके ये जो प्रेशर है ये इसे क्रश कर देगा, राइट। सो दैट इज द रीजन कि भाई अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए कोई और प्रेशर नहीं होगा तो वो उन चीजों को क्रश कर सकता है, ठीक है। सो मेन प्रॉपर्टी हमें क्या पता चली कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इट डज एग्जिस्ट और इट कैन इवन क्रश अ टिन कैन, राइट। सो वी नो अबाउट दैट। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है कि जब जो टिन है वो ठंडा हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा बैडली क्रश्ड हो जाता है, ठीक है। जब टिन कैन ठंडा हो जाता है उसके अंदर की स्टीम कंडेंस हो जाती है, सो नाउ देयर इज नो एयर टू बैलेंस दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इसको वो क्रश कर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टिन कैन को क्रश कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं पंपिंग द एयर। सो बेसिकली हम लोग पंप यूज करते हैं, फिर चाहे हम साइकिल के जो टायर्स हैं उनमें हवा भरे या फिर फुटबॉल में हवा भरे, वी डू यूज सच टाइप ऑफ पंप्स टू फिल द एयर, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू फिल द एयर इनसाइड द रबर टायर और द फुटबॉल, है ना। यहाँ पर हम एयर को मूव कर रहे होते हैं, वी पंप द एयर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, वी आर गोइंग टू फिल दैट एयर इनसाइड द बाईसाइकिल टायर और यू कैन से इनटू द फुटबॉल। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप इसका जो पंप का आउटलेट है, अगर आप किसी भी तरीके से उसे सिर्फ अपने थंब से बंद कर दें, ठीक है, तो आपको पता है ये पिस्टन मूव ही नहीं होगा। क्यों मूव नहीं होगा, क्योंकि आपने एयर का आउटलेट बंद कर दिया। सो बेसिकली एयर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और आप जो फोर्स लगा रहे हैं इवन इट कैन लाइक स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, आप जितना भी फोर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा बिकॉज आपने आउटलेट बंद कर दिया है। सो द एयर जो है वो इनसाइड है, that is still there and that is going to stop you from more pumping because you have stopped the outlet of the air. So basically जो air होती है वो pumping भी की जा सकती है and it can also stop the you can say the other thing. So it does apply a various you can say a good amount of pressure, right? Next आप देखिए यहाँ पर आप
हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी इस के लिए. तो व्हाट हैपेंड हियर कि हम लोगों ने क्या किया, एक पेपर लिया, उसको हाफ में टर्न कर दिया जस्ट लाइक दिस, उसको एक टेंट की तरह नियर द टेबल, टेबल की जो एज है उसके नियर हमने ऐसे रख दिया. अब अगर आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फूंक मारेंगे, ठीक है, आप यहाँ से एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, इनसाइड दैट टेंट ऑफ द पेपर जितने एयर है वो उधर की तरफ मूव करेगा. बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एयर उधर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, नीचे अब इस जगह पे अंदर इनसाइड दिस टनल एयर नहीं है, बहुत ही कम एयर है. दैट इज द रीजन. अब बाहर से आने वाला जो प्रेशर है वो इस पेपर को नीचे कर देगा. इट विल लाइक फोर्सेस द पेपर डाउन, राइट. और ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज द एयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड. अगर आप एयर प्रेशर को रिड्यूस कर दोगे तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो बैलेंस आउट कर रहा था वो क्या कर देगा, चीजों को खत्म कर देगा, वो क्रश कर देगा, एटलीस्ट वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा वहां पर. ठीक है. सो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि विंड स्पीड जो है वो एयर प्रेशर को अकम्पनी करते हैं. यहाँ पर आप बहुत तेजी से अगर फूंक मारोगे, बहुत ज्यादा तेजी से अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या करोगे, एयर को मूव करवाओगे विद अ हाई स्पीड. अगर आप ऐसा करवाते हो तो ऊपर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अंदर का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज बहुत तेजी से आप उसको जो है एयर को हटा रहे हो. सो यू आर डिक्रीजिंग प्रेशर, राइट. एंड दैट इज व्हाई ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसे किस नीचे की तरफ पुश करेगा, राइट. तो दिस टेंट विल बी फ्लैटेंड बाय एट सम यू कैन से एक्सटेंट, राइट. सो इससे हमें ये पता आता है कि आप जितना तेजी से यू कैन से जितना ज़्यादा तेज़ी से आप विंड को फ्लो करवाएंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ये क्या कर सकता है, क्रश कर सकता है. वाई सो, बिकॉज बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ साथ अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, राइट. एंड दैट इज द रीज़न इट हैपन्स. ठीक है. So we got the conclusion that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. क्योंकि अब एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया है, सो यू आर गोइंग टू गेट द लेस स्पीड, वेरी लेस स्पीड, राइट. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हाँ, एक और जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था, सेम ही ये चीज़ शो कर रहा है. यू कैन सी हियर दो बलून्स को विद लिटिल बिट ऑफ वाटर सो दैट इट दीज आर हैवी. ठीक है. लिटिल बिट इनको हैवी करने के लिए हमने इसमें वाटर फिल किया दो बलून्स में, उनको टाई अप कर दिया इन द फिल स्टेट, लेकिन थोड़ा सा दूर उनको टाई अप किया विद लाइक 10 to 15 सेंटीमीटर बिटवीन दैम. ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ से एयर को ब्लो करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो बलून्स हैं वो पास आएंगे एक दूसरे के. वाई सो, बिकॉज यहाँ से एयर प्रेशर अब रिड्यूस हो चुका है, राइट. रिड्यूस हो चुका है जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये दोनों इन दोनों बलून्स पे बाहर का जो एटमॉस्फेरिक लगेगा वो इन दोनों को पुश करेंगे टुवर्ड्स ईच अदर, राइट. सो दिस इज द रीजन कि भाई जो एयर प्रेशर है अगर आप उसे हटा देते हैं, अगर आप उसे कम कर देते हैं, सो द थिंग इज बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर अप्लाई होगा एंड दैट इज द रीजन दैट एयर ट्राइज टू मूव विद अ वेरी डिफरेंट स्पीड इफ यू ट्राइज टू डू सो, right. So we have done this experiment also. We observed that definitely wind speed is accompanied by the reduced air pressure. All right. Now see, the next activity we have seen is the air expand on heating. तो यहाँ पर हमने क्या किया, we have taken two paper bags. ठीक है. और किस तरीके से उनको you can say upside down तरीके से उसको हमने क्या कर दिया, इस एक बैलेंस के ऊपर जो है इन लोगों को हमने हैंग कर दिया. बैलेंस के ऊपर हमने हैंग किया विद इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल डिस्टेंस पे. ठीक है. बिल्कुल इक्वल, बिकॉज इट शुड बी बैलेंस्ड राइट नाउ. ठीक है. देन हमने क्या किया, एक पेपर बैग के नीचे हम कैंडल को लाइट अप करेंगे. ठीक है. जिससे क्या होगा, पेपर के अंदर जितना भी एयर फिल है उसे जब हीट एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगी, राइज करने की कोशिश करेगी एंड इट बिकम लाइट हो जाती है. व्हेनेवर एयर के पार्टिकल्स को जब हीट प्रोवाइड की जाती है वो लाइट हो जाते हैं, दे एक्सपेंड एंड दे मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो वो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन. एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव, तो वो अपने साथ इस पेपर बैग को भी ऊपर लेके चले जाएंगे. एंड व्हेन दे आर लाइक मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तब क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे तब क्या होगा, ये बैलेंस जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट. सो दैट इज द रीजन वी कैन सी कि ये जो कोल्ड एयर है जो इस बैग के इनसाइड है दैट इज हैवी. The light air, you can say the hot air or the warm air is lighter than the cold air. You can get that, right? And it is also move in the upward direction. Upward direction में जाने की कोशिश करती है जो भी hot and warm air होती है. ठीक है. That is what we have got from this activity.
Alright, so we got concluded that air expands on heating and occupies more space, ठीक है, and we also know that warm air is lighter than the cold air. Now see, देखो ये जो wind currents आप देख पा रहे हैं, this is the reason when what I told you about the uneven heating of the earth, right? तो आप देखिए, this is the horizon, ठीक है, that is you can say this is the equator, not the horizon, this is the equator. इस इक्वेटर पे क्योंकि सनराइज जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं एट द इक्वेटर, ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे जितना भी ज़्यादा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किसका, लैंड का टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ दैट द एयर अबव द लैंड क्या होगा, वो एयर राइज करेगी, उस टेम्परेचर से हॉट हो जाएगी, इट विल राइज एंड इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ दे आर लाइक गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, नीचे का स्पेस खाली, जैसे ही नीचे का स्पेस खाली होगा वैसे ही क्या होगा, वार्म एयर तो अपवर्ड आ गई. सो कोल्ड एयर फ्रॉम दीज प्लेसेस, फ्रॉम दीज टू पोल्स, दे फ्लो इन दैट टूवर्ड्स द इक्वेटर, राइट. जैसे ही वो इक्वेटर पे जाते हैं, ठीक है, जब तक जो ऊपर वार्म एयर गई थी, ऊपर जाके वार्म एयर कैसी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, बिकॉज ऊपर टेम्परेचर कम है, राइट, तो वो कंडेंस हो जाती है. सो इट मूव टूवर्ड्स दी पोल्स, ठीक है, तो दे विल लाइक मूव लाइक दिस, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाती है, ठीक है, एंड देन दे कूल लाइक दिस, देन अगेन दे आर गोइंग फ्रॉम दी नॉर्थ और साउथ पोल टूवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है, और ये साइकिल चलते रहती है, ठीक है, ये साइकिल चल रही है. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द विंड्स आर फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, राइट, टूवर्ड्स द इक्वेटर, बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये राइजिंग होती है. देखिए ये जो यू कैन से वार्म प्लेस होती है, दैट इज द इक्वेटर. साउथ पोल से और नॉर्थ पोल से ठंडी हवा बहते हुए इक्वेटर पे जाती है, बिकॉज दिस इक्वेटर प्लेस इज यू कैन से एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से एयर आ जाएगी अपवर्ड्स. नाउ अपवर्ड जब एयर आ जाएगी तो ठंडी हवा फिलअप कर देगी उसका प्लेस, ठीक है, टूवर्ड्स द इक्वेटर, और ऊपर जो वार्म एयर होगी वो वापस साउथ पोल पे चले जाएगी, नॉर्थ पोल पे चले जाएगी, बिकॉज दे गेट कोल्ड. सो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड दी पोल, ठीक है, मतलब अनइवन हीटिंग होता है तो इक्वेटर पे ज्यादा, पोल्स पे कम, सो दिस कैन बी टेकन एज दी अनइवन हीटिंग, और दैट इज द रीजन जो कि जो विंड जो है चलती हैं बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आप देखो जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था, तो ये देखिए लैंड और सी, तो दिन के टाइम में क्या होता है, क्योंकि सन की रेज आती है तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, लैंड क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. जब लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर की एयर जो है वो टेम्परेचर ले लेगी. अब बिकॉज एयर जो है वो टेम्परेचर ले लेगी, इट विल बिकम लाइट एंड इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो लैंड से गर्म एयर ऊपर जा रही है, जब ये एयर ऊपर चले जाएगी इसका जो प्लेस है वो खाली हो जाएगा. दैट इज वाई सी की तरफ से ठंडी हवा इसका प्लेस फिल अप कर लेगी, राइट, एंड दैट इज वाई ऊपर की गर्म हवा वहां जाएगी एंड इट विल अगेन कूल डाउन, एंड such cycle actually goes on and on. So this is called what? This is called the sea breeze, because the breeze is coming from the sea towards the land. वहीं अगर हम नाइट की बात करते हैं तो लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है एंड जो पानी है वो पूरे दिन भर का वो गर्म हो जाता है, राइट. तो देखिए क्योंकि अब वाटर गर्म है तो यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट जो एयर होगी दैट विल कंटेन ऑल द हीट फ्रॉम द वाटर एंड इट विल राइज. अब क्या होगा, यहाँ से राइज होगा तो कि जो यहाँ पे लैंड की जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ चला जाएगी, वाटर की तरफ चला जाएगी, एंड दिस साइकिल विल गोज ऑन एंड ऑन. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज बिकॉज इट इज फ्रॉम द लैंड. सो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज एंड दिस इज द सी ब्रीज. सो लैंड एंड वाटर इन दोनों का अनइवन हीटिंग की वजह से भी ऐसा पॉसिबल होता है कि विंड फ्लो होता है, राइट. एंड डू यू नो दैट मॉनसून रेन्स जो आती हैं वो इसी रीजन से आती है, बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड द वाटर, ठीक है. तो ये जनरली आपको ऐसा अक्सर देखने मिलता है, एंड दैट इज अ रीजन कि जो सी बीच हैं वहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बिकॉज वहाँ पर उस वक्त सी ब्रीज चल रही होती है, ठंडी हवा पानी की तरफ से आ रही होती है. द रीजन इज द टेम्परेचर डिफरेंस. बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट. सो दैट इज द रीजन. नाउ सी एनीमोमीटर क्या होता है, the device or you can say the instrument by which we can calculate the wind speed, ठीक है.
आपने इस तरीके का विंड वेन देखा होगा, ये एयरपोर्ट पे लगा होता है, राइट। ये विंड वेन आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये भी अलग तरीके से विंड वेन है, एंड दिस आल्सो टेल्स यू द डायरेक्शन कि भाई कौन से डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है, ठीक है। दिस इज एनीमोमीटर। इस एनीमोमीटर में 4 ऐसे हॉलो हेमिस्फेयर्स लगे होते हैं, ठीक है, एंड दे रोटेट व्हेनेवर विंड फ्लोज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, एंड दिस रोटेशन ऑफ दीज हेमिस्फेयर्स इज रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स हियर। ये इंस्ट्रूमेंट इसके रोटेशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड बाय द कैलकुलेशन वी कैन गेट द विंड स्पीड। सो वी कैन गेट द विंड स्पीड बाय दिस एनीमोमीटर, ऑलराइट। इंस्ट्रूमेंट विथ 3 or 4 hollow metal hemispheres set so that they can catch the wind and revolve about the vertical rod. An electrical device records the revolution of the cups and calculates the wind velocity. So what does happen कि जितने भी electronics यहाँ पे लगे हुए हैं, electric devices, they calculate, they observe the speed of the rotation and they calculate the wind velocity, right? So this is the you can say the device which is used to calculate the wind velocity, ठीक है। अब आप देखिए विंड एनर्जी, बिकॉज हम ये बात जानते हैं विंड मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड व्हेनेवर समथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट मीन्स इट हैज सम वेलोसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, and this wind contains that kinetic energy, and that is why we can say कि ये जो wind energy है उसे हम क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं। So basically क्या होता है, wind के अंदर बहुत ज़्यादा kinetic energy होती है, right? That kinetic energy is used by us to make the electricity. कैसे? विंड मिल्स को यूज करके। बहुत तेजी से जब हवा फ्लो करती है, बहुत तेजी से जब हवा फ्लो करती है तो क्या होता है, विंड मिल की जो इतने बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं दे रोटेट, ठीक है, उस हवा से वो क्या करते हैं, दे रोटेट, एंड व्हेनेवर दे रोटेट उनके साथ जो टर्बाइन अटैच होती है वो भी रोटेट होती है। बिकॉज ऑफ दैट जब वो रोटेट हो रही होती है उसे हम डायनामो की हेल्प से, उस रोटेशन को हम डायनामो की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो बेसिकली ये जो विंड एनर्जी होती है दैट कैन बी टेकन एंड कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द विंड एनर्जी इज दैट इट हैज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी द मूविंग एनर्जी, राइट। तो देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, दैट इसका कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, राइट, कोई भी पोल्यूशन आपको इससे नहीं मिलेगा। फिर देखिए इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज विंड तो हमेशा फ्लो होती रहती है, दिस इज द नेचर, राइट। अब देखिए ये जो सोर्स है विंड एनर्जी का, ये एयर है जो कि बहुत ज़्यादा यू कैन से ख़त्म नहीं होने वाली है, यू कैन से इनएग्जॉस्टेबल है, एंड इट इज़ यू कैन से प्रेजेंट इन वेरी मच लार्ज अमाउंट, राइट। तो you can definitely say that these are the advantages of the wind energy, but there are many more disadvantages rather than the advantages. कैसे देखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा आपको विंड नहीं मिलेगी। आपको विंड हो सकता है थोड़ी मिले, कभी ज़्यादा मिले, बट आपको हमेशा विंड नहीं मिलने वाली थ्रू आउट द ईयर, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। विंड मिल्स और जो सेल बोट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अनऑपरेशनल्स होते हैं, दैट मीन्स ये खुद से जो है होते रहते हैं, इनमें खुद से अगर रोटेट होंगी विंड मिल्स जिनकी ब्लेड्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बन पाएगी। सो हमें उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं चाहिए होता है, इतना अनऑपरेशनल रहता है क्योंकि ज़्यादातर काम वो करता ही नहीं, जब विंड आएगी तभी वो मूव कर पाएगा। फिर आप देखिए विंड की जो स्पीड है वो टाइम और सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है, ठीक है, कभी ज़्यादा स्पीड आता है, कभी कम स्पीड आता है, दैट इज़ द रीज़न कि वो मोस्टली अनऑपरेशनल रह जाते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर सिर्फ हम साइड पे यूज़ कर पाते हैं, दैट मीन्स आपको वहीं की वहीं काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, राइट। और कोई गारंटी नहीं है कि हमें थ्रू आउट द ईयर हमको ऐसा मिलेगा या फिर हर एक जगह पे हमें मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। देयर आर सम स्पेसिफिक साइट्स जहाँ पर हमें स्पेसिफिकली ज़्यादा विंड मिलती है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जब कभी भी आपको एक ऐसा प्लेस चुनने के लिए बोला जाए तो आपको ये देखना चाहिए, अगर पूरे साल आपको हवा नहीं मिल रही है तो कम से कम थोड़े टाइम के लिए तो आपको वहाँ पर हवा मिले, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कोई ऐसी गारंटी नहीं होती कि हमेशा वहाँ पे विंड फ्लो होगी ही होगी, ऑलराइट। दैट कैन बी टेकन एज दी डिसएडवांटेजेस। ऊपर से ये विंड को हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, कब आएगी कब नहीं, वी डोंट नो, राइट। ये अपने मन की मर्जी होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ज़्यादातर इसके डिसएडवांटेज हमें मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स की। सो देखिए स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स जो होते हैं वो जनरली विंड की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। विंड की वजह से क्यों,
विंड की वजह से, बिकॉज हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, राइट, दे राइज अप, जिसकी वजह से प्रेशर में डिक्रीज होता है। साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, ये सब जनरली किसकी वजह से होते हैं? प्रेशर डिफरेंस की वजह से होते हैं, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं वो जनरली हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होते हैं। हॉट और ह्यूमिड मतलब एक तो गर्म, ऊपर से वहाँ पर यू कैन से ह्यूमिडिटी इन द एयर, पानी की जो मात्रा है, यू कैन से वाटर वेपर इन द एयर आर वेरी हाई अमाउंट में होते हैं। तो देखिए क्या होता है, राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है बहुत तेजी से हवा ऊपर की तरफ उठती है, बिकॉज जल्दी जल्दी उसका टेम्परेचर और ज़्यादा टेम्परेचर राइज अप होता है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स हमें ऊपर की तरफ जाते हुए मिलती हैं। ये क्या होती है, ये जो विंड्स होती है अपने साथ आसपास, क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो अपने साथ आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स को भी लेकर जाती हैं। सारे के सारे विंड्स ऊपर जा रही हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर जा रही हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब वो ऊपर चले जाती हैं दे बिकम कंडेंस। अब वहाँ पे क्योंकि कंडेंस हो गई हैं तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगी, दे फॉल। दो चीजें एक साथ हो रही है, एक तो बहुत तेजी से हवा ऊपर जा रही है विच इज गोइंग टू बी कंटेनिंग ऑल द वाटर वेपर्स अराउंड इट, एंड ऊपर से पानी की बरसात भी हो रही है, बिकॉज जो पानी ऊपर जाएगा वो कंडेंस होके नीचे फॉल होगा, राइट। दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली एंड स्मूथली फॉलो हो रही हैं, एंड दिस कॉजेज द थंडरस्टॉर्म, right? So you can say these winds carry water droplets upwards where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air creates lightning and sound. साथ साथ पानी ऊपर भी जा रहा है, like wind, the strong hot wind is going in the upward direction and the water which freezes over there and condenses, that is falling down. तो एक ही साथ साथ अगर ऐसा दोनों जगह हो रहा है, this causes lightning and the sound, राइट, एंड इसे ही हम क्या बोल देते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। सो दिस इज द कॉज, क्योंकि यहाँ पे विंड है, स्ट्रॉन्ग विंड है, यू कैन से, राइट, दैट इज द रीजन वी गॉट अ थंडरस्टॉर्म हियर। अब देखिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमें कहीं भी आइसोलेटेड ट्री में नहीं रहना है, ठीक है। आइसोलेटेड ट्री अगर कहीं है, एक लेट्स से बहुत ज़्यादा प्लेन है या एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, उसमें एक एकलौता ट्री है, डू नॉट स्टैंड अंडर दैट ट्री, देयर आर हाई चांसेस कि उसके ऊपर लाइटनिंग हो सकती है, ठीक है। और आपको अगर आप किसी फॉरेस्ट में हैं तो आपको छोटे छोटे पेड़ों के नीचे खड़ा होना है, बड़े पेड़ों के नीचे नहीं जाना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ग्राउंड पे लाई नहीं करना है, बिकॉज हमारी बॉडी एक कंडक्टर है। लाइटनिंग हमेशा वो सोर्स देखती है जहां पर वो कंडक्टर के थ्रू जमीन में जा सके, राइट। तो अगर आप खड़े रहते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी तरीके से कंडक्टर का भी वो देखते हैं, जैसे आप किसी ट्री के नीचे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो डू नॉट स्टैंड ऑन द हाई प्लेस, ये नहीं करना है, बिकॉज एट दैट चांसेस देयर आर हाई 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 चांसेस दैट इट विल फॉल ऑन यू, राइट। अगर आप किसी अम्ब्रेला में हैं तो उसका मेटालिक एंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर, ठीक है। अगर आप किसी विंडो के पास बैठे हैं तो स्टे अवे फ्रॉम दैट। और कभी भी आप किसी यू कैन से कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, कार के अंदर रहना है या फिर बस के अंदर रहना है, ठीक है। ये क्योंकि क्या करेगा, अगर आप अंदर रहते हैं तो लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी, एंड क्योंकि वो स्ट्राइक करेगी तो वो इस कार के थ्रू ही जमीन में चले जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बट इफ यू टच द मेटेलिक पार्ट ऑफ द कार देन यू आर गोइंग टू गेट स्ट्रक बाय द लाइटनिंग, ऑलराइट। उसके अलावा आपको किसी भी मेटल की शेड या फिर किसी भी तरीके से मेटल के आसपास नहीं रहना है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू नो। इफ यू आर इन द वाटर देन जस्ट गो आउट इनटू द बिल्डिंग, राइट। आपको वाटर में नहीं रहना है, ओपन स्विमिंग पूल्स में नहीं रहना है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज जनरली वाटर हम जानते हैं टैप वाटर क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, एंड दैट इज वाई वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द कंडक्टर्स एंड द वाटर, राइट, द टैप वाटर, यू कैन से द नॉर्मल वाटर, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से ये जो थंडरस्टॉर्म है ये साइक्लोन में कन्वर्ट होता है। सो आई टोल्ड यू थंडरस्टॉर्म कैसे होता है। थंडरस्टॉर्म होता है कि बहुत तेजी से एयर जो है वो राइज अप करती है। एयर क्योंकि राइज अप करती है जिसकी वजह से नीचे क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होगा तो आसपास की बहुत सारी विंड इस जगह पर जो है जल्दी जल्दी से फ्लो करने की कोशिश करेंगे, राइट, बिकॉज बहुत तेजी से टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो द टेम्परेचर जिसकी वजह से यहाँ पे राइज हो रहा है, जिसकी वजह से एयर अब उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके हॉट बन रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड इट विल मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन।
वो अपने साथ साथ पानी को भी लेकर जा रही है, राइट, अपने साथ साथ ह्यूमिडिटी वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको साथ लेकर जा रही है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं एंड दे फॉल डाउन अगेन। तो इधर बारिश भी हो रही है, राइट, हॉट राइजिंग एयर ऊपर की तरफ है, लाइटनिंग एंड साउंड विल बी देयर ऑल्सो, क्योंकि नीचे यहाँ पे अब क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर है। सो आसपास की जितनी भी एयर है वो क्या कर रही है, इस कम प्रेशर वाली जगह पे क्या कर रही है, मूव करने की कोशिश कर रही है। सो इट विल गोइंग टू बी रोटेट लाइक दिस विद अ वेरी 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 हाई विंड, बहुत तेजी वेलोसिटी से क्या करती है, आसपास की जितनी भी एयर होती है वो यहाँ मूव करने की कोशिश करती है। सो इट बिकम्स अ साइक्लोन बाय दैट, राइट। और क्या होता है, ये पूरा का पूरा आगे भी फ्लो करता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही जगह सिचुएट रहता है। दिस होल सिस्टम एक्चुअली मूव फॉरवर्ड्स, ठीक है, और ये दूर दूर तक जाता है, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शंस मेनली, राइट। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होता है, जो भी वाटर जाता है वो ऊपर जाके क्या करता है, हीट अप एनर्जी को रिलीज कर देता है एंड इट बिकम्स कूल डाउन एंड इट कम्स इनटू दिस यू कैन से वाटरफॉल, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली में बारिश भी हो रही होती है, हॉट राइज एयर भी हो रही होती है जो कि बहुत ऊपर जाती है, राइट, एंड देन इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वी गॉट लाइटनिंग एंड साउंड, राइट। यहाँ पर एक्चुअली हीट का यू कैन से कन्वर्जन होता है, क्योंकि हीट क्या होता है, वाटर वेपर जब हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं दे कम्स इन द गैसियस स्टेट एंड व्हेन दे रिलीज हीट दे कम्स इन द वाटर स्टेट और द लिक्विड स्टेट, राइट। तो यहाँ पे हीट का भी कन्वर्जन होता है। नाउ अब यहाँ पे जो इसका सेंटर पार्ट है, जहाँ पे बहुत ही कम यू कैन से प्रेशर रहता है, इस जगह पे वाटर राइज करने लगता है, ठीक है। इस जगह पे क्या होता है, वाटर राइज करने लगता है एंड इस जगह पर बहुत ज्यादा शांति रहती है, बहुत ज्यादा एयर यहाँ पर आने लगती है, शांति रहती है एंड यहाँ पर धीरे धीरे वाटर राइज करने लगता है बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, राइट। एंड दिस इज द रीजन कि ये जो साइकिल जो रिपीट होते रहती है, इट कॉजेज अ ह्यूज साइक्लोन, ठीक है। एंड दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ द विंड, द प्रेशर, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग। और इसे हम अलग अलग कई नामों से जानते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हरिकेन है, वो इसका अमेरिकन नेम है। फिलीपींस में इसे और जापान में इसे टाइफून बोला जाता है। सो बेसिकली दीज आर द अदर नेम्स ऑफ द सेम साइक्लोन, राइट। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज गोइंग टू बी सीन इनसाइड अ साइक्लोन एंड थंडरस्टॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इट। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस, देर आर मेनली दैट काइंड ऑफ थिंग, साइक्लोन्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ी से विंड जो है बहुत स्पीड से होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, दे कॉजेज ऑल द डिस्ट्रक्शंस एंड लाइक एवरीथिंग इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन थिंग क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है एट द मिडल ऑफ द साइक्लोन, ड्यू टू विच जो वॉल है, एक तरीके से पानी जो है ऊपर आने लगता है। सो इट क्रिएट्स अ वॉल ऑफ द वाटर एंड दैट वॉल एक्चुअली गोज विद अ वेरी हाई स्पीड। जब वो वाटर स्ट्राइक करता है विद सो मच फोर्स, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, राइट। तो साइक्लोन इस वे में भी किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन मोर प्लेसेस यू कैन सी हियर, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फर्टिलिटी जो है लैंड की वो ख़त्म हो जाती है। सो एंड बाकी जो यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, हाउसेज, ऑल द एनिमल्स, पीपल, बहुत कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉजेज होते हैं, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्लड की सिचुएशन हो सकती है बिकॉज ऑफ वेरी यू कैन से बहुत ज़्यादा जब वाटर आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, बहुत ज़्यादा अगर वाटर आता है तो दैट ऑल्सो कॉजेज द फ्लड। तो अगर लो एरियाज में इस तरीके से वाटर चला जाता है बहुत ज़्यादा तेज स्पीड के साथ, so basically that causes a situation of a flood. So in that situation you must be very careful according to these, right? And now see, tornado क्या होता है? Tornado तब होता है whenever you see such type of column of air, बहुत ज़्यादा you can say rotating with very high speed, बहुत ज़्यादा तेज़ी से rotating जो एयर होती है, अगर वो इस तरीके का कॉलम बना ले, एक तरीके से एक फनल बना ले जो कि फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्काई है, दैट इज नोन एज टॉर्नेडो, ठीक है, that is known as tornado. See, the rotating column of high speed wind that appears as a dark funnel shaped cloud reaching from the ground to the sky, that is called tornado. और ये कभी कभी साइक्लोन्स के अंदर भी बनता है, ठीक है। दिस इज द मेन यू कैन से वी कैन सी। नाउ ये जो साइक्लोन जो टॉर्नेडो हम लोग देख रहे हैं, ये टॉर्नेडो
डिस्ट्रक्टिव होता है बट नॉट एज मच एज साइक्लोन. साइक्लोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है जनरली. ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, कार्स, हाउसेज, इलेक्ट्रिक पोल्स, इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है. ठीक है, यहाँ पर जनरली ये किसकी वजह से होता है? लो प्रेशर की वजह से. बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर वी आर गोइंग टू गेट सच टाइप ऑफ वेरी हाई रोटेटिंग विंड्स अराउंड you can say around with each other with very high speed, राइट. और ज़्यादातर इनका जो स्पीड होता है वो देखिए, वीक टॉर्नेडोज का 50 to 60 किलोमीटर पर आवर होता है, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग टॉर्नेडो होता है तो दे गॉट 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड. इतनी तेज़ी से स्पीड जो है रोटेट करती है, एंड इट विल मूव फॉरवर्ड ऑल्सो, राइट. सो मेनली वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी लाइक not happen, but still because of the low pressure, and these are the physical phenomena which happens around us, right. So basically इन सभी का मेन तो यही है कि वो लो प्रेशर की वजह से होता है. whenever जो एयर होती है उससे टेम्परेचर मिलता है, इट राइजेस अप, इट क्रिएट्स द लो प्रेशर रीजन, एंड फ्रॉम देयर, फ्रॉम द वेरी हाई प्रेशर रीजन, एयर कम्स टू दैट, राइट. अब वो किस वे में आ रहे हैं, कितना स्पीड में आ रहे हैं, दिस कॉजेस द डिफरेंट सिचुएशंस आउट देयर. ठीक है, what you can do and what you can definitely going to and what can be done about these cyclones and tornadoes is that एक साइक्लोन का फोरकास्ट या फिर एक वार्निंग सर्विस वहाँ पर होनी चाहिए, राइट. रैपिड कम्युनिकेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी से जल्दी बता सके ताकि लोग अपनी जगह से जा सके, राइट, उनको सेफेस्ट प्लेस पे पहुँचा सके. साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाए साइक्लोन प्रोन एरियाज में, जहाँ पे ज़्यादातर साइक्लोन्स आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, वहाँ पर अगर साइक्लोन सेंटर्स का कंस्ट्रक्शन हो जाए तो दैट विल बी ऑल्सो गुड, राइट. नाउ सी व्हाट यू कैन डू. You should not ignore the, you can say, the predictions and the information given you by the meteorological department. You should definitely not going to you can say ignore that. ठीक है, उसके अलावा आपको necessary arrangements जो है अपने साथ रखने चाहिए कि कभी भी अगर ऐसा मौका होता है, जनरली वो पीपल जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, राइट, दे नीड टू मेक श्योर कि भाई उनके पास हमेशा वो नेसेसरी आइटम्स हो, एंड देन दे रीच अप टू द सेफेस्ट प्लेस एज फार यू कैन से एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट. That should be done. Some other precautions what you can do is do not drink the contaminated water. May be contamination over there, so you need to make sure that you take care of this water and you store the water so that you can use that also. ठीक है, किसी भी wet switches को, because हम जानते हैं पानी कंडक्टर है and we are also conductor, किसी भी wet switches को, किसी भी fallen power lines को नहीं टच करना है, ठीक है. और सिर्फ फन के लिए तो बिल्कुल बाहर नहीं जाना है. यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट इट. किसी भी रेस्क्यू फोर्स को प्रेशर नहीं करना है किसी अनड्यू डिमांड को लेकर, राइट. अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज को सबको कोऑपरेट करना है एंड हेल्प करना है, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स you can say about all the necessary things you need to talk about, right, and that is the main thing. You need to consider all those things, right. So we have completed our whole chapter, right. We have revised our whole chapter. Now it needs to be done that आपको क्या करना है, बहुत सारे questions जो हम लोगों ने देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसकी तैयारी करनी है. So you need to revise this chapter again at your own on your own. अगर आप ऐसा करते हैं तो it would be so much better कि आपको बहुत जल्दी से चैप्टर रिमाइंड हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, राइट. सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो बी रेडी फॉर दैट. आई विल बी प्रिपेयरिंग यू ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, right. So let's get in the entire lecture. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.